नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर हफ्ते हम आपके समक्ष किसी न किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेकर आते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच मिस्टर रुपिंदर सिंह जी एज अ गेस्ट स्पीकर हैं और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि उन्होंने आज हमें समय दिया। My pleasure. Rupinder ji is a CEO in Biohouse Solutions Private Limited. तो सर, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। Thank you so much. Really appreciate that you gave time. तो आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर द्रव्या से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करें। Thank you, Mr. Arora. Good evening, everyone. Before we start our program for today, I would like to briefly talk about Federation of Indian Industry here and give an insight about our work. Federation of Indian Industry is a not-for-profit organization. It is an advisory interface between the government and industries. We offer a platform for networking and relationship building within and across the industrial sectors, policymakers, and the international business fraternity. Our Director General, Shri Deepak Jain, he is an entrepreneur, philanthropist, and an economic policies advisor. He is also the National Working President of Digambar Jain Mahasamiti. He has several papers and policy documents to his credit, which include Economic Vision Document for BJP, several papers on economics for Government of India, working papers on Yamuna Action Plan, Plan for Gold Bond Scheme, Voluntary Disclosure Scheme, etc. I would also like to introduce our guest speaker for today, Mr. Rupinder Singh. He is the CEO of Biohouse Solutions Private Limited. Other than that, he is also a gold medalist in MSc Biotechnology from Punjab University. He has 25 years of total experience across MNCs. He's also been the Regional Director of Asia, BD Biosciences, Head India. He's been awarded several times, including the Braveheart Award, 3 times in a row at BD. He has several magazines and media coverage all over. He has worked with several startups, including his own venture, and got investors an ROI of 15 times in 4 years. He lives by the motto, have fire in the belly and spread it around. I welcome you, Mr. Singh, on our show. Thank you so much for being with us today. Yeah, it's my pleasure, Dr. Dravya. It's so nice to connect with Mr. Sanjiv and you. And I feel very happy because I have been always believing that learning is a two-way process. So we all learn from each other. So I'm here for learning today, and I'm sure, whatever best I can contribute, I would love to do that. If you allow me, I will give you a little introduction about myself. Ji, bilkul. We want to know the person behind the profile I just shared. Please. Yeah. So I'm a biotechnologist, gold medalist from Punjab University, Chandigarh. And I believe that, we can do wonders in this field. So I have been an ardent believer of, creating a sustainable biotech ecosystem in India. So I passed out from Punjab University, Chandigarh. I had several fellowships. As I said, I was university gold medalist. I filed 4 Indian patents as first author, 1 international PCT application as first author. So after passing out from Punjab University through campus interview, I got into Lupin R&D. So I worked there for almost 5.5 years. That's where I filed my patents and I did my research work. And after that, I got opportunity to work with Becton Dickinson, BD, which is a healthcare major, it's a US multinational. So I was heading BD Biosciences for India region. Opportunity to work with Irish multinational by name Kerry. It's another 8 billion euro multinational. So I started as India head, and then I became regional director Asia, and all those news used to be published in Biospectrum and several magazines. So I was doing very well in my multinational job. I was going places, but then I always wanted to do something for my country. I always wanted to have my own biotech company. And that's where in 2010, I started this small company by name Biohouse. And we grew pretty fast, by 3rd or 4th year, we jumped multifold. But I always wanted that in my company, that your startup or, so we had to bootstrap. I remember, my company was just 2 months old.
and I went to bank manager and gave him a presentation, and he was also wondering, this is what I want to do, and sir, please fund me for my business. No, very big, but they started giving us some credit line. So a lot of learnings happened in the process on the way. A set of learnings, with particularly youngest nation, in the world, we have highest number of youth, highest number of young people, in that age bracket. So if we can transfer our them, so they can do wonders for this country. And this is where now I'm associated with entrepreneurship platforms. I have my YouTube channel, so I try to share again bits. So because of that, I also have circle, in various IITs and entrepreneurship cells. So I try to connect. So I'm enjoying what I'm doing. That's wonderful to hear. Thank you so much for sharing your story, Mr. Singh. My next question, but if you were to give just 3 learnings throughout your journey, पूरे जीवन का संक्षेप आप 3 ऐसे पॉइंट्स में बता सकते हैं जो लर्निंग्स आगे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए. तो सबसे पहली तो लर्निंग है, स्टार्ट अर्ली. और हमारे जमाने में किसी ने हमें सिखाया नहीं था. So we have internet. I still remember जब पहली बार हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे modem के through, and there used to be this typical sound, and that also started when I was into my PhD work early days. So वहां से लेके आज तक there is tremendous change. Now kids have all the information available, so they should start early. So first advice, if I have to give, start early. So it will help you with power of compounding. आपकी image, आपकी wealth creation, आपका business sense, all should start early. And we have access to mentors, we have access to everything, but शुरू थोड़ा जल्दी करना है. हम लोग काफी लेट हो जाते थे. तो पहली एडवाइस तो है start early. Second advice, if you allow me, is create value. बहुत सारे Shark Tank है, हर कोई everybody is crazy about startup and everybody wants to do it. But my question to them all the time is, क्या आपने कभी वैल्यू पहले कभी क्रिएट करी है? क्या आपने कभी कुछ बेचा है? या कभी आपने किसी को कन्विंस किया है बचपन में? तो अगर आप कन्विंस नहीं किया, अगर आपने बेचा नहीं कुछ भी, तो आप अपना स्टार्टअप आइडिया से इन्वेस्टर को कैसे बेच देंगे? आप कस्टमर को सामान कैसे बेचेंगे? आप सर्विस कैसे बेच देंगे? सो सेकेंड थिंग इज स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यू फ्रॉम वेरी अर्ली. अब जैसे आप इफ यू लुक एट ऑल द बिलियनियर्स, आप इलॉन मस्क देख लो, रिचर्ड ब्रांसन देख लो, डोनाल्ड ट्रंप देख लो, सबको देख लो, दे स्टार्टेड अर्ली. आप वॉरेन बफेट को देख लो, अखबारें बेचते थे बचपन में. एंड ऑन माय चैनल आई हैव स्टारबक्स स्टोरी, आई हैव डोमिनो स्टोरी. सब लोगों ने दे स्टार्टेड अर्ली एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग वैल्यू. जब आप किसी को वैल्यू देते हो ना, रिवॉर्ड मिलता है. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं मैं बिजनेस चालू कर दिया तो आई एम गोइंग टू बी सुपर बम्पर सक्सेसफुल. नहीं, इफ यू आर नॉट एडिंग वैल्यू, इट विल नॉट हैपन. आज आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है, बट अगर मैंने आज एड वैल्यू नहीं करी, फ्यूचर में प्रॉब्ली यू विल नॉट लाइक टू कॉल मी. सो second advice is start adding value. And third, understand the problem which you are going to solve for the society or for the customers or for the nation or for the community. अगर आपके पास वो solution ही नहीं है, वो problem ही नहीं है, so then you are hitting in the dark, you are wasting your time. So ये 3 advice I think I would give to everyone who starts, particularly students. मिस्टर सिंह, आपने फेलियर्स के बारे में अपनी लर्निंग्स शेयर करी. बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी ऐसे 3 बातें या एडवाइसेस आप शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने खुद ही बोल दिया, फेलियर्स. आप बॉक्सिंग रिंग में ना जब तक खुद मुक्के नहीं खाते हो ना, get the punch in your face, several times, and then you should have audacity to stand up again and fight. तो जिसने फेलियर नहीं देखा ना, तो उसने तो सक्सेस चांस ही नहीं है. एंड हम लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस, बट ओवरनाइट सक्सेस कुछ होती ही नहीं है. उसके पीछे सालों की, 10 साल, 15 साल, माँ बाप की, उसकी खुद की, सोसाइटी की, पता नहीं किस किस की एफर्ट लगी होती है उस फेलियर से फिर से उठा के फिर सक्सेस की तरफ डालने के लिए. आप यू टॉक अबाउट एनी स्पोर्ट्स पर्सन, यू टॉक अबाउट एनी एंटरप्रेन्योर, फुल ऑफ फेलियर्स. अगर आपको फेलियर नहीं झेल सकते ना, तो मतलब एंटरप्रेन्योरशिप तो छोड़ो, आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते. सो दैट इज समथिंग which I would say is point number 1. Second point is, if you do not know the fundamentals, so learn the fundamentals first. मैंने कोई मेरे पास पिच डेक लेके आइडिया लेके आया,
मैंने उसको कहा कि आपने मुझे 2 रुपए का सामान 3 रुपए में बेच दिया, हैप्पी? सो ही सेड आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं क्या, मैंने आपको पैसे तो दिए नहीं, अभी आपकी जेब में कितने हैं? कह रहा 0, अभी तो 0 है पैसे। मैं क्या, टाइम पहले कितने थे? कह रहा 2 रुपए थे। मैं क्या, अब जेब में कितना है? कह रहा 0। सो आई सेड अनलेस आई गिव यू 3 rupees, you have profit margin of 1 rupee, but your cash flow is negative 2 rupees। जो आपके 2 रुपए थे वो भी गंवा दिए। अगर अब मैं 6 महीने पैसे नहीं दूंगा, आप बिजनेस नहीं चला पाओगे महीने के लिए, अनलेस यू बोरो कैपिटल फ्रॉम समवन एल्स, एंड फिर ऐसे ही कार्यक्रम कर दो। सो यू नीड टू लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग वेरी वेरी क्लियरली। अगर आपको प्रॉफिट नहीं पता है, अगर आपको कैश फ्लो नहीं पता है, अगर आप की प्रोजेक्शंस नहीं बना सकते हैं, अगर आपको कॉस्ट एनालिसिस करना नहीं आता, और किसी को भी नहीं आता होता, तो आपको सीखना पड़ेगा। उसकी बजाय अगर आप चल देंगे ना कि मेरे को बिजनेस करना है, और आपने किया कुछ नहीं है, या आपने सो यू विल डू ऑल द मिस्टेक्स। सो सेकंड पॉइंट वुड बी लर्न द फंडामेंटल्स फर्स्ट। और आप वो कहां से करेंगे? इज नंबर 3, यू मस्ट हैव मेंटोर। अब मैं मेंटोर की एग्जांपल देता हूं आपको। इफ यू want to be a tennis player, and if you are playing with someone who himself does not know tennis, आप 6 महीने खेलते रहो, थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। बट अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप 3 महीने नेशनल चैंपियन के साथ रोज खेलोगे 3 घंटे, बेनिफिट द मोस्ट, यू विल बेनिफिट द मोस्ट। आप 2 महीने बाद ऐसा शॉट मारोगे कि वो भी देखेगा कि यार टेनिस स्टार तो मैं था, बिकॉज द गाय विद whom you are playing, or in other words, mentor, can teach you much faster because he has gone through that। उसकी सोच, उसकी स्ट्रेटजी, उसका तरीका आप knowingly unknowingly बड़ी जल्दी सीखते हो। सो द रोल ऑफ मेंटोर, गुरु, जैसे हमारे शास्त्रों में भी द्रोणाचार्य थे, वो तो उनके चेले थे, वो गुरु थे तो एकलव्य थे, वो गुरु थे तो अर्जुन थे। सो रोल ऑफ मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कई लोगों को वो मेंटोर नहीं मिले। तो मेंटोर टाइम पे मिलना या मेंटोर साथ लेना। आपको ऐसा भी हो सकता है जैसे एकलव्य ने किया कि आप किसी की बुक पढ़ो, उसके बारे में बहुत सारा पढ़ो, सो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली अ मेंटोर। सो रोल ऑफ मेंटोर एंड गुरु, आई वुड से, इज द थर्ड पॉइंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने एक बहुत ही सटीक बात बोली। बहुत लोगों को मेंटोर नहीं मिलता है, पर आप अगर किसी एक मेंटोर को साध लें, दैट इज ऑल्सो उतना शायद नहीं होगा, पर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जहां आप खड़े वहां से बहुत ऊपर उठ सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। फॉर एग्जाम्पल इन आवर केस, बायोटेक्नोलॉजी के मेन है डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ मैडम जी। उससे तो नहीं मिल पाया, बट जब मैं बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना शुरू किया था, उस टाइम उन्होंने बायोटेक का अपनी कंपनी कहीं से कहीं ऑलरेडी शी वाज वर्किंग ऑन दैट, तो शी इज अ रोल। मेरे को तो नहीं मौका मिलता उनसे बार बार मिलने का, तो लेकिन जितना उनके बारे में पढ़ पाऊं, उनसे सीख पाऊं, और फिर जिस दिन मुझे मौका मिल गया, इट वाज ए ग्लोबल बायो, आई थिंक 2 years back in there was a big bio global India gathering, so I got opportunity to ask her question, मैंने वहां वो क्वेश्चन पूछा, मैंने वो क्वेश्चन रिकॉर्ड किया, और वहां से मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया। मुझे लगा कि अब मैं इसको रिकॉर्ड कैसे करूं कि मैं अपने जो गुरु हैं, मैडम हैं, जिनको मैं से मौका ढूंढ रहा था, उन्होंने मुझे कुछ जवाब दिया, तो मैं कहाँ रखूं। सो देन माय सन हु इज नाउ इन IIT, ही सेड, पापा एक काम करो, आप यूट्यूब चैनल बनाओ, मैं वहां पे लगा देता हूँ। एंड दिस इज वेयर आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग थिंग्स इन यूट्यूब, ताकि और कोई देखे ना देखे, मुझे भी देखने के लिए आई हैव समथिंग। सो ऐसे भी आप गुरु साध सकते हैं। रुपिंदर जी, आपने जैसे गुरु जी की बात की, हमें हर लाइफ के हर मोड पे गुरु की जरूरत होती है। बिना सबसे पहले तो हमारे गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, राइट। उसके बाद लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे हम स्कूल गए, कॉलेज गए, लाइफ स्किल्स किए, बिजनेस में आए, हर जगह हमें गुरु की जरूरत पड़ी है और आगे भी पड़ती रहेगी। और लेकिन अब आज एपिसोड में मेरा एक बहुत ही एक पर्सनल सवाल है कि
स्कूल एंड कॉलेज लाइफ, देन आफ्टर दैट बिजनेस Right. लाइफ, और आपने बताया कि जो अर्ली स्टेज में स्टार्ट करें, तो हर शख्स के पीछे कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है। तो आपके Right. पीछे क्या इंस्पिरेशन रही जिसने आपको ड्राइव किया आपके फेलियर्स में, आपके कैरियर की शुरुआत करने में? बताएं हमें। So दो लोगों का बड़ा मेजर रोल है यहाँ पे. So it starts my childhood. It starts with my mother, you know. So as I said, my father is a doctor, so mother was also in the same profession. She's a nurse. दोनों ने मिलके नर्सिंग होम चलाया and they were very successful. और जैसे मैं अकेला बेटा था, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, that was the norm those days. तो मैं नहीं बना क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज ऑलवेज शार्प, फर्स्ट आता था हमेशा क्लास में, बहुत सारे मेडल लेके आता होता था. अब मेरे बच्चे लेके आते, यू कैन सी जस्ट एक साइड मैंने पीछे लगी हुई है. सो बट जब भी मैं फेल होता था, जैसे मैं डॉक्टर नहीं बन पाया या मैं बहुत दुखी होता था, तो माई मदर ऑलवेज यूज टू से कि हिम्मत नहीं हारना. और एक वर्ड वो बोलते होते थे कि मर्द का बच्चा बन, जाके पत्थर से टकरा जा, लेकिन वापस मत आ. एंड मर्द डज नॉट मीन अ मैन. व्हाट शी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बी अ स्टील पर्सन. सो जो जहां भी मैं फंसता हूं ना, कभी भी बहुत परेशानी में फंसता हूँ, बहुत होता हूँ, तो मुझे अपनी मदर की वो बात याद आती है कि हिम्मत नहीं हारना, भिड़ जाना, पत्थर से टकरा जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट so don't give up. So that is one, I think, which has carried me along through my exams, through my entrepreneurship journey. जब मेरे को परेशानियां होती, so that is one. And second is my wife. She is also gold medalist. She's from computer background, so she's MCA computer gold medalist. And she's the one who is behind my kids. One kid going to IIT, another one going to BITS, Pilani, and both of them are doing pretty well because of her. So मैंने उनसे ये सीखा है कि वो उसमें उतर जाती है, पूरी घुस जाती है. जब वो बच्चों को तैयारी करवाती थी, वो पहले भी बचपन में ट्यूशन पढ़ाती थी, तो वो उस चीज में घुस जाती हैं. वो ऐसे टेंशन लेती थी जैसे उनका एग्जाम है, उनका IIT JEE का एग्जाम, या उनके स्कोर आने वाला है. So I think so diving deep, this is what I have learned from her. Whatever you do. So that is another inspiration. मैं जब कभी फेल होता हूँ या चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं होती ना, मुझे ये भी याद आता है कि शायद आई एम नॉट डाइविंग डीप, मैं अपने गोल्स पे, आई एम नॉट रेजर शार्प ऑन माई गोल. अगर होता तो मैं उसमें और बारीकी में जाता. आई थिंक 2 people in my life, I'm lucky to have, though my father and lot of other people, but वो फिर लंबा हो जाएगा. जी, वंडरफुल लाइफ लेसन्स. आई मीन आज के प्रोग्राम से मुझे नहीं पता कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमारी ऑडियंस कितना सीख पाएगी, पर मेरी जनरेशन के लिए, आई थिंक आई कैन सेफली से इट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ माय जनरेशन, देयर विल बी अ लॉट मेनी अदर वैल्यूएबल थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. और एंटरप्रेन्योरशिप यही है सारी, जब उसकी मैं बात करूंगा ना, तो वहां पे ये सेम चीजें वहीं पे आ रही है. एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले नेवर गिव अप. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, दूसरे दिन आपने बिजनेस चालू किया और दूसरे महीने सोच रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, यू आर राइट, नहीं हो पाएगा आपसे. सो नेवर गिव अप. दैट इज द नंबर 1 थिंग इन लाइफ, और फॉर एन एंटरप्रेन्योर. अब जैसे यूट्यूब चैनल है मेरा और मेरे ने इकट्ठे स्टार्ट किया, उसके 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है. ही इज मैनेजिंग हिज स्टडीज, ही इज देयर इन ऑल द एक्टिविटीज. मेरे भी 2,500 सब्सक्राइबर है. बट आई सेड, बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम देयर. सो एंटरप्रेन्योरशिप में नेवर गिव अप. देन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम व्हिच यू हैव टू सॉल्व फॉर द कस्टमर. देन यू हैव टू टेक पीपल अलोंग, सो दे शुड शेयर योर विजन. अकेले तो ताजमहल नहीं बनेगा. सब लोग बोलते शाहजहां ने बनाया. आई डोंट थिंक शाहजहां ने बनाया. शाहजहां के ख्वाबों में वो क्रिएट हुआ, इट गॉट एग्जीक्यूटेड अलोंग विद. जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात. लास्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी पूछूंगी. जी, श्योर. जी, with the hot startup season that is there, and especially in the time of Shark Tank, what should people do to get into business?
Yeah, so in a way, that's a very good question. Environment is really charged up. Shark Tank देख देख के सबको लगता है कि uh, what we all fail to understand is that people who are reaching there, they have already done certain level of groundwork and execution before they reach there. बहुत सारे लोगों ने उसको सोच लिया. इट इज वेरी इजी, सब्जी मंडी टाइप, कि इतने परसेंट इक्विटी ले लो, नहीं नहीं हम इतने में इतने ले लें, नहीं ऐसा करो इतने. So that is the reality. But after doing lot of execution prior to reaching that stage कि आपको कोई सुनने के लिए तैयार बैठा है वहां पे, आप you are being shortlisted, you are being screened. So number one, you have to be really razor sharp on your आइडिया जिसके ऊपर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, जिस पे आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने जा रहे हो. जब आपके पास वो आइडिया है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, देन यू हैव टू वर्क ऑन द सॉल्यूशन. व्हेन यू हैव वर्कड ऑन द सॉल्यूशन, देन यू हैव टू टेक टीम अलोंग टू एग्जीक्यूट दैट सॉल्यूशन. एंड व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दैट सॉल्यूशन अलोंग विद योर टीम इन द मार्केट, देन कस्टमर्स विल स्पीक गुड अबाउट यू. आपका बिजनेस अपने आप हो जाएगा, लेकिन शायद नहीं होगा. क्यों? नाउ कम्स द बिजनेस फंडामेंटल्स. अगर आपको बैलेंस शीट नहीं समझ में आती है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ में आती है, अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं समझ में आती है, तो आप वो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल वाला को-फाउंडर रखो, या खुद निपुण हो हर चीज में. समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क एज ए सोलोप्रेन्योर. तो आप को फाउंडर रखिए जो कि कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स लेके आए. सो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, जब ये सारा करोगे और आपका वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, बिजनेस तो अपने आप चलेगा. जी बिल्कुल सर. थैंक यू रुपिंदर जी. आज आपके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, हमें भी और हमारे ऑडियंस को भी. और समय बहुत जल्दी निकल गया, बातें बहुत करने को हैं, बहुत कुछ पूछने को है, लेकिन आज समय अलाउ नहीं कर रहा. तो हम आपसे सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस के यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एपिसोड हम आपके साथ और करना चाहेंगे, आपकी परमिशन के साथ. तो डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच. समय आई थिंक बहुत खूबसूरत समय निकला जो हमने अभी. जी बिल्कुल, नो डाउट सर. आज मैं आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी थ्रू आउट द डे. और आज हमारे ऑडियंस को आपसे बहुत कुछ आपकी जर्नी के बारे में जानकर मैं समझता हूँ कि उनको वो इंस्पायर हुए होंगे. जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, तो आपकी जर्नी से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया. और हमें भी सीखने को मिला तो कि लाइफ में, मुझे भी सीखने को मिला कितने अच्छे तरीके से आप कंडक्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं. आई थिंक यू आर बेनिफिटिंग लॉट ऑफ पीपल. सो मुझे बहुत अच्छी लगी और सीखने को मिली. थैंक यू सर. तो आज इसके साथ ही सर इजाजत लेते हैं. नमस्कार. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.